خوش آمدید. Good evening, good morning. یس گڈ ایوننگ. جو بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جہاں جہاں سے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں, ویلکم. یہ میرا ایمان ہے کہ آپ وفاداری سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. جو بھی گھر کا کام آپ کو ملتا ہے, جو بھی تلاوتیں آپ کو ملتی ہیں, آپ Net کا problem ہو رہا ہے. یس تھینک یو تھینک یو تھینک یو عمران. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو سفر ہم نے شروع کیا اس پر وفاداری سے چلتے رہیں. کبھی کبھی سفر تو سب شروع کرتے ہیں, لیکن وہ اس پر وفاداری سے چلتے نہیں. اس لیے جو منصوبہ ان کے لیے خداوند نے تیار کیا, اس فضل سے محروم رہ جاتے ہیں. آج کے دن ہمارے اس سفر کا 8واں سیمینار ہے, تم میرے گواہ ہوگے. ہم اس بات کو آج کے دن اچھی طرح جانیں گے کہ کون کہتا ہے تم میرے گواہ ہوگے. میرے جو یسوع کہتا ہے تم میرے گواہ ہوگے, لیکن کب تم میری گواہی دو گے؟ جب میں تمہیں پاک روح سے مسح کروں گا. کیونکہ ہم اپنی انسانی قوت سے یسوع کی گواہی نہیں دے سکتے. اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے, پاک روح کا مسح نہ مل جائے, جب تک تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور وہ وفاداری سے وہاں ٹھہرے رہے اور اس وعدے کا انتظار کرتے رہے, دعا اور بندگی کے ذریعے. اور عید پینتیکوس کے دن خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا. اس طرح میرے جزو ہماری زندگی میں بھی خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا. اس نے ہمیں مسح کیا, فضل دیا, لیکن اس فضل کا مقصد ضرور ہے. سب سے پہلا مقصد ہے کہ ہم اس فضل کی قوت سے یسوع کی گواہی دیں. دوسرا مقصد ہے پھلدار زندگی گزاریں, خوشحال زندگی گزاریں. یہ خداوند کا منصوبہ ہے. وہ ہمیں خوشیاں دینے کے لیے آیا, مسائل دینے کے لیے نہیں آیا. شفا دینے کے لیے آیا, رہائی دینے کے لیے آیا, گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا. اور اس نے اپنا یہ مشن پورا کیا. میرے جیسو یہ دو بنیادی بات ہیں جو ہمیں پاک روح قوت دیتا ہے تاکہ ہم ایسی زندگی بسر کریں, یسوع کی گواہی دیں اور پھلدار زندگی گزاریں, خوشحال زندگی گزاریں, جس کو دیکھ کر لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں, یہ اس کے پیروکار ہیں, اس کے ماننے والے ہیں. میرے جیسو جب ہم لوگ اس سچائی پر غور کر رہے ہیں, ہمیں یسوع کے گواہ بننا ہے. یسوع کی گواہی کے لیے ہمیں یہ فضل ملا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا یہ سفر شروع کیا. سب خوش ہیں کہ ہمیں پاک روح نے چھوا ہے, فضل سے معمور کیا ہے. اب ہم نئے انسان بن گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن آئیں پاک کلام میں دیکھتے ہیں نئے انسان بننے کا کیا مطلب ہے. دوسرا کرنتھیوں 5:17 سنیں غور سے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں گزر گئی ہیں, دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں.
आमीन। एक बार फिर पढ़े, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मेरे जैसो, नया मखलूक होने का क्या मतलब है? नई जिंदगी पाने का क्या मतलब है? ये नई जिंदगी कब हमारे अंदर रहती है? जब हम यीशु में रहते हैं। अगर कोई मसीह में है तो फिर वो नई मखलूक है, अगर वो मसीह में नहीं है तो नई मखलूक नहीं है। दूसरी बात पौलुस कहता है, पुरानी चीजें गुजर गई, देखो सब चीजें नई हो गई हैं। लेकिन मेरे जो पुरानी चीजें कौन सी थी? वो गुनाह की गुलामी जिसको हमने उतार फेंका। पुरानी चीजें कौन सी थी? जब हम दुआ नहीं करते थे, जब हम पाक कलाम नहीं पढ़ते थे, जब हम दुआया मीटिंग के लिए कभी हमारे पास वक्त नहीं था। लेकिन मेरे जो ये सारी चीजें अब हमारी जिंदगी में तब्दील हो गई। अब हम हर रोज पाक कलाम पढ़ते हैं, हर रोज दुआ करते हैं। ये वफादारी के साथ इस सफर में हम लोग चलते हैं। इस तरह हम यीशु में नए मखलूक बन जाते हैं। मेरे जो ये नए मखलूक बनने का सफर हमारी जिंदगी में शुरू हुआ। नई जिंदगी का सफर हमने शुरू किया, मुसलसल शुरू किया। लेकिन मेरे जो हम अभी तक मुकम्मल तौर पर नए नहीं बन पाए, बल्कि नए बनने का सफर शुरू किया, और ये सफर जारी रहेगा। हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती रहेंगी, हम उनका मुकाबला करेंगे, उनमें से गुजर जाएंगे और अपने सफर को जारी रखेंगे। ये एक दिन का सफर नहीं, ये हमारी जिंदगी का सफर है। जैसे ही हम यीशु से दूर जाएंगे, हम फिर मसाइल का शिकार हो जाएंगे। हम देखते हैं रोमियो 6 बाब उसकी 11 आयत में सारी चीजें पाक कलाम में मौजूद हैं। हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा। मेरे जो ये पुरानी चीजें थी, मैंने कहा आपको कि ये पुरानी चीजें मुकद्दस पौलुस कहता जाती रही, गुजर गई हैं। हम अब उन मुर्दा चीजों को दोबारा जिंदा ना करें, बल्कि जो नई जिंदगी मिली है उस जिंदगी में सफर करें। मसीह यीशु में जिंदा समझे अपने आप को, गुनाह की जिंदगी में मुर्दा और मसीह यीशु में जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, ये नई जिंदगी का सफर है, ये यीशु की गवाही देने का सफर है। लोग महसूस करते हैं, देखते हैं कि ये शख्स तो बुरे काम करता था, अब ये काम, इसके काम अभी बदल गए, तब्दील हो गए। लोग हैरान होते हैं देखकर, ये शख्स तो चर्च नहीं जाता था, अभी हर रोज चर्च जाता है, कभी इस शख्स को दुआ करते नहीं देखा। मेरे जीजो, ये सारे काम जब हम करेंगे तो ये दूसरों के लिए गवाही बनेगी। गवाही का मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथ में बाइबल पकड़ें, सारे दूसरे काम छोड़ दें, सड़क पर खड़े हो जाएं और हालेलुया हालेलुया यीशु की गवाही देना शुरू कर दें। मेरे जीजो, ऐसा नहीं। यीशु की गवाही हमारी अमली जिंदगी के साथ है। जो काम हम करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारेंगे, वहां हमें यीशु को दूसरों तक पहुंचाना है। हैरान कौन बात है, मुकद्दस फ्रांसीसी अपने शागिर्दों को उसने सिखाया, तैयार किया और खिदमत के काम के लिए भेजा, और उन्हें कहा आप जाएं, गांव में जाएं, लेकिन वहां अपनी जबान बंद रखना, गांव में चलते फिरते रहना, गुजर जाना वहां से, लोग तुम्हें देखेंगे और लोग तुम्हारे चलने फिरने, तुम्हारे उठने बैठने, तुम्हारी बोलचाल, सब चीजों से परख लेंगे कि तुम मसीह के लोग हो। इस तरह तुम्हारी गवाही उन तक पहुंचेगी।
मेरे जो अमली जिंदगी सबसे अहम है। हमारा ईमान यीशु पर है, लेकिन हमारा ईमान जिंदा कब होता है? जब हम ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। इस वक्त बहुत सारे मसीही मुर्दा ईमान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें खुदा ने जिंदा किया, नई जिंदगी का फजल हमारे अंदर अंडेल दिया। गुनाह की निस्बत हमने मुर्दा किया, अपने आप को खुद हमने स्टेप उठाया, हमने तौबा की और खुदा ने हमें फजल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, ये यीशु की गवाही का मतलब है। किस तरह हम दूसरों को यीशु का पैगाम दे सकते हैं, उनकी जिंदगी में तब्दीली के अमल को शुरू कर सकते हैं, उन्हें यीशु के पास ला सकते हैं। ये मुख्तलिफ पहलू हैं यीशु के गवाह बनने के। हालेलुया। मेरे जीजो, ये नई जिंदगी का सफर है जो मसीह में रहने से ही नई मखलूक बनकर हम इसे जारी रख सकते हैं। पाक रूह की कुव्वत से ही जारी रख सकते हैं। बदल लोगों को मिलता है, लेकिन मेरे जीजो उसमें चलना और कायम रहना ये सबसे अहम बात है। मेरे जीजो, ये बात जरूर हमारे सामने है कि सेमिनार मुकम्मल करने का ये मतलब नहीं कि हम कामल हो चुके हैं, हम बिल्कुल अभी मुकम्मल बन गए, ऐसा हरगिज़ नहीं। मेरे जो सेमिनार मुकम्मल होने का मतलब है हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हम नई जिंदगी का सफर शुरू कर चुके हैं। हालेलुया, ये उसका मतलब है। एक और हवाला पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें। फिलिपियों 3:12 से 14 आयत तक मुकद्दस पौलुस बड़ी वजाहत से हमारे साथ इन सब बातों को बांटता है। ये नहीं, गौर से सुने। यस, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि पीछा किए जाता हूं ताकि जिस गर्ज के लिए मुझे यीशु मसीह ने पकड़ा मैं उसे किसी तरह से जा पकड़ूं। ए भाइयों, मेरा ये गुमा नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मगर सिर्फ ये कि मैं उन चीजों को जो पीछे हैं भूल कर उनके लिए जो आगे हैं बढ़ते हुए यीशु मसीह में खुदा की आसमानी दावत के इनाम को पाने के लिए निशान की तरफ दौड़ रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पौलुस ने हमारे लिए वाज़ेह कर दिया, साफ हम समझ सकते हैं कि मुकम्मल होने का क्या मतलब है। उसने यीशु को कबूल किया, ऐसा शख्स जो मसीहों को कत्ल करता था, यीशु का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनके नाम लेने वालों की जुबान काट देता था। मेरे तो ये वो शख्स है जो कहता है अब मैं यीशु को पा चुका हूं। ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, उसके पीछे चल रहा हूं जिसने मुझे पकड़ा है, जिसने मुझे कातिल से इंसान बनाया, मोहब्बत करने वाला, नफरत मेरे दिल से खत्म करके मुझे उसने चुन लिया, मुझे उसने पकड़ा। यीशु ने मुझे पकड़ा। उसे किस तरह से मुझे पकड़ा है, मैं उसके पीछे अभी भाग रहा हूं, उसके पीछे चल रहा हूं। मुकद्दम इस बात पे फख्र नहीं करता कि मैं इस वक्त यीशु को पकड़ चुका हूं, यीशु के करीब आ चुका हूं, यीशु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन इस पर फख्र करता हूं कि मैं इस सफर को जारी रखे हुए हूं। आगे 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 बढ़ते जाना, यीशु मसीह के खुदावंद की आसमान की बादशाही के लिए, उसको पाने के लिए, उस इनाम को जिसका उसने वादा किया है कि जो आखिरी वक्त तक कायम रहेगा, वो जिंदगी का ताज पाएगा। कहता है मैं उसे पाने के लिए दौड़ रहा हूं। उसने अपनी दौड़ मुकम्मल नहीं की, बल्कि जारी रखी हुई है। तो मेरे जो कामिल होने का मतलब अच्छी तरह समझें कि जो फजल आपको मिला है, ये आगे तरक्की करने के लिए आपको मिला है, इसमें आपको बढ़ना है।
मुसलसल इस दौर को जारी रखें। हालेलुया। मेरे जो आंधियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, रुकावटें आएंगी, तुम्हारी इस दौर को रोकने के लिए हम रोकेंगे नहीं अपने आप को। ये जुल्मतें, ये आंधियां बढ़ती रहेंगी, लेकिन हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे उसकी कुव्वत और कुदरत से जो उसने हमारी जिंदगी में अंडेली है। मेरे जो ये इस सेमिनार का मतलब है। इस सेमिनार के जरिए, इस सफर के जरिए मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको उस मकाम पर ले आए जहां से आप अपना सफर शुरू कर सकें, जहां से आप यीशु के मसा को लेकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें। मेरे जैसो अभी सब कुछ आपके ऊपर है कि आप वफादारी से चल रहे हैं या जो फजल मिला था उसे खो दिया या जमीन में दबा दिया। लेकिन मेरे जैसो यही वो सफर है जो वफादारी से चलते हैं, अपनी रूहानी तरक्की पर तवज्जो देते हैं। उनके लिए मत्ती ने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बीज बोने वाले ने हमारे अंदर बीज बो दिया बीज। अब उसे पानी देंगे, वो बीज उगेगा। फिर उसकी हिफाजत करें, आंधियों से बचाएं, धूप से बचाएं, सर्दी से बचाएं, उसकी हिफाजत करें, उसे मुनासिब खुराक दें ताकि वो दरख्त फलदार बन जाए। फिर आप महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कितना फल लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग 30 गुना पे रुक जाते हैं, कुछ लोग और मेहनत करके 60 गुना फल हासिल करते हैं, लेकिन वही रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौड़ को जारी रख के 100 गुना फल तक, हालेलुया, 100%, 100 गुना फल तक वो अपनी जिंदगी का सफर जारी रखते हैं, फजल पाने का सफर जारी रखते हैं, कुव्वत पाने का सफर जारी रखते हैं, यीशु की कुर्बत में आने का सफर जारी रखते हैं, दूसरों को यीशु के पास लाने का सफर जारी रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो ये इस सेमिनार का मतलब है, ये इस सफर का मतलब है। ये सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सफर आपकी जिंदगी में अभी शुरू हुआ। हमने सिर्फ सेमिनार शुरू किया था, वो सफर मैंने ही आपके साथ शुरू किया था। अभी अपना सफर आप खुद शुरू कर चुके हैं। हालेलुया। खुदावंद के रूह ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप अपना सफर शुरू कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसे जारी रखने के लिए मरकस पौलुस ने हमें कहा कि मैं फख्र नहीं करता कि मैं पा चुका हूं, बल्कि मैं तो पाने की दौड़ में दौड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। इसी सफर पर हमें जारी रहना है। आप जरूर इस बात पर सोचेंगे कि ये 100 गुना फल पाने का तरीकाकार, राज क्या है। मेरे अज़ीज़ों, बार बार पाक कलाम में हम जाते हैं और ये सारी सच्चाइयां हमें पाक कलाम से मिलती हैं। यीशु खुद हमें बताता है, पाक रूह हमें खुद इस बात का तरीका बताता है किस तरह हम 100 गुना फल पा सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी अंजील में साफ साफ लिखा है कि कैसे मुमकिन होगा कि हम 100 गुना फल पा सकते हैं। यूहन्ना 15 बाब 9 से 4 आयत तक पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि हम किस तरह ये फजल पा सकते हैं, किस तरह हम 100 गुना फल तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। सुने गौर से। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो, ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग
उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। आमीन। हालेलुया। मेरे जीजू, अगर गौर से आपने इन आयत को सुना है तो 100 गुना फल लाने का तरीकाकार भी यहाँ पर वाजे कर दिया गया है कि मुकम्मल तौर पर यीशु कह रहा है, तुम मुझ में कायम रहो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, अपने कुव्वत से कुछ नहीं कर सकोगे। ताकत, कुव्वत और कुदरत जो मेरे पास है उसमें कायम रहो, तुम बहुत सा फल लाओ, ये उसका मंसूबा है। मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे जीजो, मैंने आपको कहा तुम मेरे गवाह होगे, ये उसकी गवाही है कि हमारी जिंदगी में लोग फल देख सके। ये उसके बाप का जलाल है कि हमारी जिंदगी में फल नजर आए, फिर तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे अगर तुम्हारी जिंदगी में फल है। मेरे जीजो, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी दूसरों को प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। लेकिन मेरे जीजो, बुनियादी चीज है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह डाली दरख्त में कायम रहती है, मेरे जीजो, अगर हम फजल देने वाले से हट जाएंगे तो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में भी फल बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जीजो, हम खुद फल नहीं ला सकते, हमें यीशु में कायम रहना सबसे अहम बात है। उसमें कायम रहेंगे तो जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें कायम नहीं है, खुद ही अपनी जिंदगी से अपने मसाइल हल करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। हम जरूर इस सच्चाई पर गौर करें और इस बात को गौर से समझें, अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। 4 और 5वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे जीजो, इसलिए यीशु में कायम रहना, मकस पुरुष पहले ही बात कर चुका है, पहले ही वाज़ह कर चुका हो कि नई मखलूक कौन है? जो यीशु में है। यीशु में नहीं है और नई मखलूक नहीं है, नई जिंदगी उसमें नहीं है। यीशु नई जिंदगी देता है और नई जिंदगी देने वाले में ही हमें कायम रहना है। उसके साथ हमने अपनी जिंदगी के इस सफर को जारी रखेंगे। तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये बुनियादी नुक्ता है। यीशु में कायम रहना, यीशु के साथ मिलकर इस सफर को फलदार बनाना। हालेलुया। मेरे जो ये वो सारी सच्चाइयां हैं जो पाक कलाम में हमारे पास वाजे हैं। अगर ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, उसने कह दिया, अगर तुम मुझ में रहोगे और मेरी बातें तुम में रहेंगी तो जो कुछ तुम मांगोगे मिल जाएगा। यीशु की बातें क्या है? उसका पाक कलाम, जिंदा पाक कलाम। अगर हम उसमें हैं, उसके साथ सफर कर रहे हैं, उसे बकायदा पढ़ रहे हैं, उसकी रोशनी में चल रहे हैं, उसकी रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहे हैं, यीशु में हैं, तो फख्र करें। उसने कहा जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। ये नहीं कि उसने देने का सफर बंद कर दिया, फजल अंडेलने का सफर बंद कर दिया, बल्कि हमें फसल देने का दरवाजा खुला रखा, खुला छोड़ दिया। इस सफर में जो आपकी जिंदगी का साथ चलता रहेगा, जो कुछ मांगोगे। हालेलुया। मैंने देखा इस सेमिनार में लोगों के पास गवाहियां हैं, सेमिनार अभी तक जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ और फजल से भर चुके हैं। हालेलुया। जो मांगा था उसके लिए इंतजार करते थे, ढूंढ रहे थे, अभी वो फजल खुद उनकी झोली में खुदा की तरफ में इनाम के तौर पर डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु का फजल, ये यीशु की मोहब्बत है। वीक में लोगों के साथ बातचीत करने के वक्त महसूस किया, मालूम किया कि किस तरह खुदावंद अपने बातों में सच्चा है। उसका मांगो तो तुम्हें मैं
دوں گا. لیکن میرے جو مانگنے کی شرط کیا ہے؟ یسوع میں قائم رہ کے مانگے, نئی مخلوق بن کر مانگے. یسوع سے قائم نہیں رہیں گے پھر مانگیں گے دینے والا کون ہے؟ کیونکہ دینے والے کے ساتھ نہیں ہے. دینے والے کے ساتھ رہ کر مانگے, اس کے ساتھ ٹھہرے, اس کے ساتھ زندگی گزاریں, اس کی باتیں سنیں اور ان باتوں کو عملی طور پر اپنائیں. ہاللیلویا. میرے عزیزو, یہ ساری چیزیں ہماری اتنی مدد کریں گی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس ترقی کے عمل کو, اس سفر کو جو ہم کر رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا, ہم مسیح کے بدن ہیں, سارے حصے مل کر کام کرتے ہیں. ہمیں بھی اس وقت کوشش کریں, اس رات کو سمجھیں, جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو چنا تو انہیں ایک ایک کر کے نہیں بھیجا, بلکہ انہیں دو دو کر کے بھیجا. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اگر ہم گر جاتے ہیں تو ہمارا دوسرا ساتھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اٹھا لیتا ہے اور ہم پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی گر گیا, ہم اس کا ہاتھ اٹھاتے, اس کی دعا کرتے ہیں. یہ جماعت کی زندگی ہے, مل کر رہنے کی زندگی ہے. اس لیے جو ہماری پری میٹنگز ہیں, اس سیمینار کے بعد آپ کو اپنی پری میٹنگ میں وفاداری سے آنا ہے, تاکہ آپ کا یہ جو پھل ہے وہ بڑھتا رہے. جماعت سے کٹ جائیں گے تو آپ اکیلے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آندھی آئیں گی, شیطان تو انتظار کر رہا ہے کب آپ اکیلے ہوں اور وہ آپ پر حملہ کرے. اس لیے یسوع نے دو دو کر کے بھیجا تھا, تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں جنہیں ابلیس حملہ کر کے گرا دے, بلکہ دو کی قوت ہے, جماعت کی قوت ہے, اتحاد کی قوت ہے جو یسوع نے ہمیں دی. اس لیے اس نے جماعت بنائی, کلیسیا بنائی. میرے عزیزو, ہم سب جماعت کا حصہ ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا, پہلی بار بھی, پچھلے سیمینار میں بھی کہا تھا, اپنی شخصی دعا میں قائم رہیں, اپنی خاندانی دعا میں قائم رہیں, اور جماعت کی دعا میں قائم رہیں. یہ جماعت پاک بدن اور خون لینے کے لیے آپ کو چرچ جانے کی ضرورت ہے. ویکلی آپ کی جو دعائیا میٹنگز ہے, جہاں آپ کے ساتھی مل کر دعا کرتے ہیں, جماعت کے لوگ, ان کے ساتھ مل کر دعا میں ٹھہریں. یہ ساری زندگی کا سفر ہے, ایک دن کا نہیں ہے. جماعت میں رہیں گے تو ترقی کرتے جائیں گے, فضل اللہ آپ کی زندگی میں بڑھتا جائے گا, اور بھی آپ کی مدد سے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح کلیسیا بنی اور اسی طرح کلیسیا ترقی کر رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ابتدائی کلیسیا میں شاگرد دعا کرتے تھے, رسول کے اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لاتے تھے وہ ان میں شامل ہو جاتے تھے, اور مسلسل جماعت ترقی کرتی گئی. یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا, پوری دنیا کو میرا پیغام پہنچا دو. میرے جیسو, یہ وہ ذمہ داری تھی جو شاگردوں نے پوری کی, اور آج ہم مسیحی ہیں. یہ سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. اور آج کلیسیا اس پودے کو پانی دے رہی ہے. آج بھی کلیسیا کے لیے آزمائش ہے, بہت سارے مسائل ہیں. مسیحی زندگی کے لیے مختلف ملکوں میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن کلیسیا اس پودے کو پانی دے رہی ہے, ان آزمائشوں کا مقابلہ کر رہی ہے یسوع میں رہ کر, اور یسوع اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, ضرور اس بات کو سچائی سے غور سے سمجھیں. مقدس پالوس نے یہاں لکھا ہے, عبرانیوں 10 باب 24 سے 25 آیت تک, وہ اس سچائی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم جان سکیں. عبرانیوں 10 باب 24 سے 25 آیت تک. اور ہم محبت اور نیکوکاری کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں, اور باہم اکٹھے ہونے سے باز نہ رہیں جیسا کہ بعض کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور یہ
उसी कदर ज्यादा किया करो जिस कदर तुम उस दिन को करीब आते हुए देखते हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो मकरस पालूस ने इतनी वजाहत कर दी कि यहाँ कुछ अंधेरा नहीं कि आप ना समझ सकें। क्या लिखा है? बाहम इकट्ठे होने से बाज ना रहें। हम जमात का हिस्सा हैं, जमात को मत छोड़ना। मेरे जो जमात ही आपकी कुव्वत है। ये वो जगह है जहां से हमने फजल पाया। अभी हमने फजल पाया जमात में, हमारा ग्रुप है, पूरे जमात के साथ हमने ये सेमिनार किया, एक बंदे ने नहीं किया, पूरे मिलकर हम लोग जमात में थे और मसलसल ये सफर हमने शुरू किया। और हर रोज आप दुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हफ्ता हमारे सामने आता, ये वक्त सब फौरी तौर पर जमात के लिए इकट्ठे हो जाते। फौरी तौर पर उस वक्त पर अपने मोबाइल ऑन करते हैं, जूम डालते हैं और हम लोग हेलो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत में कायम रहो और अच्छी तरबियत की तालीम दो। ये मेरे जो हमारी अमली जिंदगी है, जिस पर अपने गौर करना, यही यीशु की गवाही है। इसी तरह ही हम गवाही के इस काम को जारी रख सकते हैं। लिखे अगर हम लोग कट जाएंगे, हट जाएंगे, जमात से निकल जाएंगे, दुआ से हट जाएंगे, यीशु से हट जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में कोई फल नहीं रहेगा। पहले से भी खराब जिंदगी हमें मिलेगी, पहले से भी ज्यादा मसाइल हमारे साथ आ जाएंगे और हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का रूह हमें कुव्वत देता है ताकि हम जमात में कायम रहें। शायद हमारे पास कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी, हम दुआ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पौलुस ने कहा रोमियो के खत में, फिक्र मत करें, जब पाक रूह आएगा वो तुम्हें दुआ करना सिखाएगा, वो तुम्हें अल्फाज देगा, मुख्तलिफ जबानों में आपको सिखाएगा। एक शख्स से मैं बात कर रहा था, तो गैर जबान में पैगाम मिल रहा है कि यीशु ही राह है, यीशु ही जिंदगी है। अब जिन्हें ये इल्म नहीं था, रूह ने ये बात खोल दी। इस बात को अपने भाई के जरिए, अपने बेटे के जरिए, अपने पैरोकार के जरिए अपनी जबान में ये वाजे कर दिया और उसका तर्जमा भी उसको बता दिया कि यीशु ही राह है, यीशु ही जिंदगी है, कोई और नहीं। मेरे जो जिंदगी देने वाले से दूर मत जाए। जिंदगी देने वाले का कलाम हमारे साथ मौजूद है, उस कलाम से दूर मत जाएं। जब हम पाक कलाम को छोड़ देते हैं, इसका मतलब है हम यीशु को छोड़ देते हैं। पाक कलाम से दूर जाने का मतलब है यीशु से दूर जाना, और यीशु से दूर जाने का मतलब है फजलों से दूर जाना, कुव्वत और कुदरत से दूर जाना, बचाने वाले से दूर जाना, कोई और नहीं होगा। इस बेदीनी के दौर में, खास तौर पर इन दिनों जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये मसाइल की दुनिया है, परेशानी की दुनिया है। ये वैसा दौर है जिसके बारे में पाक कलाम से पहले ही लिख दिया कि ऐसे हालात पैदा होंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होंगे, तो फिरके, बिदतें, झगड़े, लड़ाइयां पैदा हो जाएंगी। और ये वो वक्त आ चुका है। इसलिए इस वक्त यीशु को मत छोड़ें। ऐसे दौर में वही आपको बचाएगा और वही इस जिंदगी के सफर को आपके अंदर जारी रखेगा। इसलिए उसने हमें कुव्वत दे दी, ताकत दे दी। हमसे ज्यादा आजमाइशें इब्तिदाई कलीसिया के पास थी, लेकिन मेरे जैसे उन्होंने रूह की कुव्वत से उनका मुकाबला किया और उनमें से गुजरे, फतह पाई यीशु के नाम में, जिस वजह से आज कलीसिया मौजूद है। वरना हमारी आजमाइशें तो कुछ भी नहीं, उन्हें तो जिंदा जला दिया गया, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया गया ताकि वो यीशु का नाम ला ले। लेकिन मेरे जो उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, वो यीशु में कायम रहे। हालेलुया, हालेलुया। और आज उनका नाम इस वक्त जिंदा है। वही पौलुस जिसका पैगाम अब हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रोम में ले गए और वहां रोमियो ने उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं उस बचाने वाले का नाम
अपनी जबान से बंद नहीं कर सकता। जिसने मुझे मुर्दा से जिंदा किया, कातिल से इंसान बनाया, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे मैं नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये मुकद्दस पौलुस की गवाही है। वो यीशु का गवाह बना रूह की मामूरी पाने के बाद। हालेलुया। हम सबके पास ऐसी ही गवाहियां हैं मेरे जो, जब हम सफर शुरू करेंगे, हमें ये फजल मिला ही इसलिए था ताकि हम यीशु की गवाही दें। इमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ के देख सकते हैं हम लोग कि ये फजल हमें किस लिए मिला। मिला ही गवाही देने के लिए था। ये कुव्वत मिली थी हमें झगड़े करने के लिए नहीं, तो फिर के जाने नहीं, बल्कि गवाही देने के लिए। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। साफ लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये है आज का सेमिनार, तुम मेरे गवाह होगे। कब तक? जमीन की इंतहा तक। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का सफर है और इसी काम के लिए उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। अब फख्र महसूस करें कि उसने आपको चुन लिया, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। हमने उसे फजल नहीं दिया, उसने हमें फजल दिया। उसने आपको मसा किया, उसने आपके आंसुओं को पहुंच दिया, उसने आपके लिए रोजगार के दरवाजे को खोल दिया, उन सारी आजमाइशों के दरवाजों को बंद कर दिया जो आप पर हावी हो रही थी। हालेलुया। हम उसका शुक्र करते हैं और फख्र करते हैं जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हमने हमदो साशा गीत गाया, शुक्र करो उसका जिसने बड़े बड़े काम किए। और वो ऐसे ही हमारा खुदावंद नहीं, उसने साबित किया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसने बड़े बड़े काम किए शुरू से लेकर अब तक, और इंतहा तक वो बड़े बड़े काम करता रहेगा। हालेलुया। उसके कामों को कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। एक और हवाला पढ़ते हैं ताकि ये सच्चाई हमारे समझ में आ जाए। मेरे जो गौर से सुने, यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत। यीशु ने आपको चुना ताकि आप फलदार जिंदगी गुजारें। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना। क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें मुकर्रर किया ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मेरे जो मैंने शुरू में आज आपको ये बात बताई है, आज का सेमिनार तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन मेरे जो गवाही वाजे कर चुका हूं मैं, यीशु का पैगाम अमली तौर पर लोगों को पहुंचाएं, उसका पैगाम पहुंचाएं और अपनी जिंदगी में उस पैगाम को अपनाएं। लिखा है, जाओ फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। मेरे जो जब हम लोग उसके साथ हैं, फिर हम जो मांगते हैं मिलता है। लोग मांगते हैं, आते हैं हमारे पास, भाई दुआ करें, मेरे ये मसाइल है। जब उनसे पूछता हूँ मैं, आप दुआ करते हैं? भाई हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत मसरूफ है, आप हमारे लिए दुआ करें। अब यीशु का देने का तरीकाकार ये नहीं है। उसने कहा मुझ में कायम रहो, फिर मुझसे मांगो तो जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। हम उस पर कायम रहना नहीं चाहते, उसके लिए वक्त हमारे पास नहीं है। हम दुनिया में कायम रहना चाहते हैं जहां से मसाइल मिलते हैं। तो फिर मेरे जो मसाइल तो मौजूद है दुनिया में रहेंगे, दुनिया में तरक्की करेंगे, दुनिया के कामों में बढ़ेंगे तो दुनिया मिलेगी। यीशु के कामों में बढ़ेंगे, यीशु की मोहब्बत में, उसके फजल में, उसकी कुव्वत में, उसकी कुदरत में रहेंगे मेरे जो, तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी के बर्तन थे और उसने हमें चुन लिया। उसका शुक्र करें। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तुम मुझ मिट्टी के बर्तन को चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। मैं अपनी माजी की जिंदगी पर गौर करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे नाचीज मिट्टी के बर्तन को अपने फजल के लिए चुन लिया। ऐसे गांव में मैं रहता था,
जहां पर तालीम की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, स्कूल भी नहीं था, लेकिन मेरे दिलो ये उसका फजल है कि उसने मुझे सब कुछ मुहैया किया, तालीम उसने मुहैया की। आज यहां तक पहुंचने का सफर जो मैंने शुरू किया, इसे उसने कंप्लीट किया, उसने मुकम्मल किया, मैंने मुकम्मल नहीं किया। मेरे पास ऐसी कुव्वत कहां से, ताकत नहीं। इस सच्चाई को हमेशा याद रखें मेरे दिलो कि जब आपने सफर शुरू किया था मेरे साथ, वो दिन याद रखें, उसके पीछे की जिंदगी को याद रखें, उसके पीछे के मसाइल को याद रखें, और उसके बाद जो फजल मिला उसका शुक्र करें और उसको याद रखें, ताकि आपको ये एहसास हो कि उसने मुझे चुन लिया और क्या से क्या मुझे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत बख्शे ताकि हम उसकी गवाही के इस सफर को जारी रख सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस सफर को हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर बढ़ाता रहेगा जब हम उसके पीछे चलते रहेंगे। थैंक यू खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूँ, तूने हमें चुन लिया। आए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ उठाएं, खुदावंद का शुक्र करें कि उसने आपको चुन लिया। सब अपने हाथ उठाएं मेरे दिलो, अपने माइक खोलें, दुआ में हाथ उठाएं। हालेलुया।